Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous class we have discussed about alcohols. We just started the chapter number 18 and it was about alcohols, the nomenclature of alcohols when it comes to the common and the IUPAC naming of alcohol. So we have just discussed all these things. In today's lecture we are going to start with the physical and chemical properties and the preparations of alcohol, and we will try our best to complete this topic. Okay, so let's we start with the first part. Let's we have a recall of the previous lecture. That was start of the chapter, and we just discussed the general formula of alcohol, what are the types of alcohol, how do we classify them, how do we name according to their IUPAC, and we have seen different examples of alcohols, and plus we have seen the physical properties of alcohol plus the structure of alcohols, and how they are, why they are acid, why they have acidity property. So today we are going to start with the preparations of alcohol, and then we will see the properties of alcohols, chemical properties actually, and normally the chemical properties are also named as uses of that particular for example, the chemical properties you can use them in for the uses also. Fine, all the chemical reactions are named as uses as well. So let's we start with the preparations of alcohol. First of all, how can we prepare them? So basically when it comes to preparation of alcohols, we have so many ways we can prepare them. Obviously you can see them, those kind of reactions on so many places या कि यहाँ पे भी आपके पास alcohol preparation होती है, but obviously we will restrict to our book. So in our book there are total 6 methods of preparation of alcohol, and first one is hydration of alkenes. What is the meaning of hydration of alkenes? Hydration means simple addition of water, in alkenes. So definitely if you know what alkene is basically double bonded hydrocarbons. So when we just add alcohol water, so water contain HOH. So simply what you will do, you will simply add H on the first carbon and OH on the second carbon, और that's how we just for example ये आपके पास होगा, so that's how we just use them. Okay, so in the preparation of alkenes we just add the, it is a kind of addition reaction. Then next we have hydrolysis of alkyl halide. Hydrolysis of alkyl halides means कि we just again it's a substitution kind of reaction in which hydrolysis means कि you will just break the, hydrolysis means water को break करोगे and alkyl halides के साथ उसका reaction होगा, and at the end it's kind of substitution again. Reaction of RMGX, if you remember, that is actually a Grignard reagent. It is a reaction of RMGX with aldehydes or ketones, and if you remember these were the properties we have seen and we have discussed them in detail, that with the mechanism actually, how do we prepare primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, and these properties are going to be repeated. Okay, then we have a reduction of aldehydes and ketones. Obviously these kind of reactions actually reversed bhi ho jate hain, so we will again see the reduction of aldehydes and ketone. Then we have a reactions of RMGX with esters, and last one is reduction of carboxylic acids and esters. So it's a I'll let you know how do we start them. So first of all, it's a hydration of alkene. I'm not going to discuss much about that topic because it's a very easiest actually way. Simple, you have a double bonded compound, you have a carbon and carbon here, and what you will do, for example if we have a sulfuric acid, so sulfuric acid actually जब हम इसको break करते हैं, so this H part, this is what we have to remove it from here, और ये आपको bond addition, it's a kind of addition reaction, and here what we will here they are not mentioning water, but यहाँ water मौजूद है, so this H is going to be added here, so this one is going to be converted into CH3, then you have a CH2, and then this CH2 is going to be bonded with O, और बाकी सारा का सारा आपके पास वही लगा रहेगा initially, and then after that the name of this product is ethyl hydrogen sulfate, and further on this ethyl hydrogen sulfate reacts with another water molecule actually, और जब होगा, so again this is your final product and it is ethanol. As you can see, this is the ethyl alcohol, ये आपके पास prepare हो जाएगी, and after that your sulfuric acid, ये जो आपके पास है, it is going to be recovered.
सही है। सो ये आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिकवर हो जाता है, तो जब ये रिकवर हो जाएगा यहाँ पर तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर सी दिस इज़ योर RX एंड दिस इज़ योर OH, फाइन। ये दोनों ने रिएक्शन करना है एंड सिंपली व्हाट अगेन विल हैपन, सिंपल ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास OH group है, this one, this OH group is going to just replace this X, and that's all about these kind of reaction. You can use any of the alkyl simple यहाँ if you can see we are using sodium hydroxide, you can use potassium hydroxide, any of the species which is having a strong होना चाहिए थोड़ा then this halogen, and we have two strongest bases, KOH and NaOH. So normally we just restrict to what is written in our book, so sodium hydroxide है तो we will just use that. Now this is the reaction which we have studied for the RMGX, if you remember, for Grignard reagent. So it is again repeated, how you are going to prepare primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, and these were discussed in detail with the mechanism. These are present in the alkyl halide chapter with the when we discussed about Grignard reagent और उनकी chemical properties थी actually. So this is very important reaction actually, और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और बहुत ज़्यादा आता भी है. So ये जो चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको ये होना चाहिए कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है. So इसके अंदर मेन आपके पास क्या है कि when we have a primary और secondary और tertiary, so इसके अंदर मेन चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो सिंपल आपके पास ये था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने ये देखना होता है कि आपके पास पेन यूज़ कर लेती हूँ कि आपके पास पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है. तो अगर आपको रिएक्शंस वो वाले याद हो तो वहाँ वो वाले रिएक्शंस आप उनको देखिएगा, और उसके अंदर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस लगा भी रही हूँ. यहाँ आपके पास HOH हम यूज़ भी कर रहे हैं. तो सिंपली क्या होगा कि H पॉजिटिव के साथ होगा और बाकी OH MgX जो है वो एक साथ लिखते थे. प्रैक्टिस की है ये, इट इज़ रिपीटेड एक्चुअली. सो दैट्स वाई अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने, इस लेक्चर से पहले, लास्ट लेक्चर से पहले हमने ये चीज़ पढ़ी है. दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज आप लोग देख चुके हैं. आई वॉन्ट टू टीच यू न्यू पैटर्न. उसके बाद आ रहा है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन के बाद आपके पास जो इथेनॉल है, कुछ चीज़ें फिक्स होंगी. फिक्स क्या होंगी कि अगर आप इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराते हो, ये कराते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब कि आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, इथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको ये मिलेगा, और इनकी आप रिडक्शन कराओगे तो आपको ये मिलेगा. दिस इज़ फिक्स्ड रिएक्शन. सही है. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिवर्स्ड रिएक्शन हम करा सकते हैं. तो यहाँ आपके पास अगर हो रहा है एल्डिहाइड रिडक्शन हो रही है, एल्डिहाइड रिडक्शन में क्या रिडक्शन है, एज यू नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द catalyst. So when ethanol is undergoing reduction, so it form ethanol, and when ethanol undergoes oxidation, so it form ethanol. Why I am repeating here? Because in the next chapter we are going to study the preparation of aldehyde obviously and ketone obviously. So ये reaction वहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है. So because in second year we have so many reactions, so इन चीज़ों को हमें इसी तरह पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ ये चीज़ रिपीट हो रही है. एंड आगे अब आप देखोगे कि मैं हर चीज़ पे कहूँगी कि हमने पहले यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है. जैसे अभी आपने प्रीवियस स्लाइड देखी थी जिसके अंदर हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाले रिएक्शंस की बात की कि वो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है, तो वो वहाँ रिपीट हो गया. तो हाँ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वी हैव सो मैनी प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडेड इन द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, बट दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो इफ़ आप एक दफ़ा भी उस चीज़ को अगर बहुत ध्यान से पढ़ लेते हो तो जब वो रिपीट होगी तो डेफिनेटली आपका वो रिकॉल हो जाएगा, वो रिवीजन हो जाएगा, और यही चलता रहेगा. आप सही है. ज़्यादातर 80 to 90% हमने यही करना है. ओके, सो दिस इज़ द इथेनॉल. इथेनॉल अंडरगोज रिडक्शन, सो इट फॉर्म इथेनॉल. एंड इफ़ वी वांट टू सी अबाउट द कीटोनिक, सो कीटोन के अंडर जब रिडक्शन होगी तो ऑब्वियसली वी हैव टू मिथाइल रेडिकल. सो ऑब्वियसली रिडक्शन आपके पास सिंपल यहाँ पर होगी. सही
ये यहाँ H लग जाएगा. So this one is ethanol and this one is 2-propanol, and I am sure कि you can differentiate between what is the primary alcohol and what is the secondary alcohol here. It is a primary alcohol and that one is you have alpha carbon. alpha carbon के साथ आपके पास यहाँ पर 2 alkyl radicals मौजूद हैं. So this one is secondary alcohol. So इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि how do we form primary alcohol and secondary alcohol. Next is reaction of RMGX with ester. It is again repeated. This is what we have studied in the Grignard part and that was shared and that was discussed with mechanism. बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था. Again it is repeated. So a reaction of RMGX with esters, सिंपल ये हो रहा है कि आपका RMGX के साथ आपने इसका रिएक्शन कराया था और ये 2-3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ था. बट हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डायरेक्ट मेथड. Simple, you have this one is ethoxy ethanoate and okay. सो इसको आपने क्या कहना है कि आपने इसको इसके ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देना है. तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, दिस CO बॉन्ड विल ब्रेक एंड बिकॉज इस O के ऊपर नेगेटिव साइन होगा. मैं ज़रा सा इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ. दिस O विल कंटेन नेगेटिव साइन एंड दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस Mg is positive. So this O is going to attack on this Mg. If you remember यही हुआ था वहाँ पर भी. OMgX होगा और बाकी ये जो R है आपका, ये क्योंकि नेगेटिव है और ये ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन अगर नेगेटिव है तो ये कार्बन क्या होगा, इट वुड बी पॉजिटिव. सो ये नेगेटिव पॉजिटिव की कहानी है सारी, वो सारा आपने लिख देना है. एंड देन HOH के साथ आपने जब वाटर के साथ रिएक्शन कराना है तो H के ऊपर पॉजिटिव साइन है, OH के ऊपर नेगेटिव साइन है. यहाँ ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव है और बाकी ये जो आपके पास है ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है. तो ये O किसके साथ मिल जाएगा, H के साथ. तो ये सारी आपने चीज़ एक साथ लिख देनी है जो आपके पास बन रहा होगा. ये रीअरेंजमेंट के बाद होगा बट मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ. और ये जो आपके पास C2H5 है, दिस C2H5 इज़ गोइंग टू कंबाइन विद OH एंड इट विल फॉर्म इथानॉल. ये चीज़ बन जाएगी आपके पास. और बाकी यहाँ पर जो है इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं. फर्दर ऑन ये जो O नेगेटिव है इट कैन अगेन ये 2 स्टेप में आप रिएक्शन कराओगे. 2 स्टेप में किस तरह कराओगे कि एक दफ़ा इसको HOH के साथ रिएक्शन करवाओ. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. एक दफ़ा इसको HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देख लोगे कि आपके पास OHMgX ये चीज़ फॉर्म होती है. फाइन. और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होगा. तो यहाँ पर जब ये वाला पार्ट वाटर के साथ फॉर एग्जांपल रिएक्शन कर रहा है, सो ये क्या बनाएगा, अगर आप इसको पूरे को H के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा C2H5OH. और अगर आप इसको ब्रेक करके करते हो तो भी ये हो सकता है, ऐसा कोई वो इशू नहीं है कि ये नहीं होगा या ये नहीं बनेगा. तो और यहाँ पर जो रिएक्शन है ये इसको हम इतना बता देती हूँ कि यहाँ पर जो रिएक्शन बेसिकली हमारे सामने लिखा गया है वो ये वाला लिखा गया है. इस तरह किया जा रहा है. C2H5OH बन रहा है, ये यहाँ बन गया. ये वाला पार्ट जो है आपके पास जो यहाँ पर ये वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर ये बना रहा है. और लास्ट जो आपका NGX रह गया है वो OH के साथ मिला है और उसने हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हलाइड बना लिया है. अच्छा, इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा कि कहीं H और H तो बैलेंस नहीं हो रहे, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक H और एक OH होता है, बहुत सारे होते हैं. तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रही होती हैं. नेक्स्ट वी हैव अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक acids and esters. Yes, it is a reaction of carboxylic acids and esters. ये आगे पढ़ना है हमने और ये आगे आएगा. बट अगेन हमें पढ़ना है तो हम इसको देखेंगे कि आपके पास होगा क्या. बेसिकली अगेन दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप हेयर एंड इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन. और ये रिडक्शन करेगा तो अगेन इतना बता देती हूँ कि ये जो मैं एक रिएक्शन आपको बता रही हूँ उस रिएक्शन को याद रखिएगा कि जब भी हम अल्कोहल्स, अभी हमने पीछे देखा था अल्कोहल्स की हम कराते हैं ऑक्सीडेशन जब भी हम अल्कोहल्स की कराते हैं ना तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होंगे. ये एक फैक्ट है. और अगर हम एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन कराएंगे, ओ छोटा हो गया, तो ये कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. ये एक फिक्स रिएक्शंस हैं, ये चेन चलती है, मतलब एक चेन के पैटर्न पे ये रिएक्शंस जो हैं ये चल रहे होते हैं. अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्ट कर देते हैं, रिवर्ट इन द सेंस कि इफ़ आई एम अलोइंग इट टू रिड्यूस इटसेल्फ, सो इट विल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड. हेयर इट इज़ रिटन डायरेक्टली, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा
बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं कि बीच में आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बनने के बाद जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे, बिकॉज़ ये रिडक्शन हो रही है, तो वो एल्कानॉल या अल्कोहल जो आप जो भी कहें उसको, वो बनेगा। ठीक है। सिमिलरली इट गोज़ विद द ईस्टर फॉर्म ऑल्सो, के सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन कराने पर आपके पास इथेनॉल बन रहा है, और साथ में एल्केनॉल जो नाम दे रहे हैं वो चीज़ फॉर्म हो रही है, और साथ में आपके पास अल्कोहल जो है वो बन रहा है। फ़ाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, रिएक्शंस की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी हैव एंड हाउ रिएक्टिविटी अल्कोहल्स रिएक्ट। तो रिएक्टिविटी इनकी जो हम बात करते हैं, अल्कोहल रिएक्ट्स विद अदर रिएजेंट ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ CO एंड OH बॉन्ड। डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड टूट कौन सा रहा है। तो नॉर्मली हम लोग जो तोड़ रहे होते हैं वो OH को अलग कर रहे होते हैं। ये अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका C अल्काइल रेडिकल अलग होगा, और OH बॉन्ड जो है ना, आपका रेड कलर ले लेती हूँ, OH बॉन्ड जो है ये आपका अलग होता है, और ये वाला बॉन्ड आपका, मतलब ब्रेकिंग इसकी हम इस तरह से कर रहे होते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके पास टर रिएक्टिव है, उसके बाद सेक है, उसके बाद प्राइमरी है, उसके बाद सिंपल अल्काइल रेडिकल होगा, सिंपल अल्काइल मिथाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, इफ़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, अच्छा यहाँ पर ब्रेकिंग एज आई सेड के दो तरह से होती है। दो तरह से ब्रेकिंग कौन सी है, एक ब्रेकिंग तो ये है, ठीक है, और एक ब्रेकिंग क्या होती है, उसमें ये पूरा का पूरा आपका, एक ब्रेकिंग तो आपका OH बॉन्ड टूटता है, और एक ब्रेकिंग में आपके पास ये पूरा का पूरा जो है ये अलग होगा, और H पॉजिटिव आपका जो है वो अलग होता है। ठीक है। सो लेट्स वी सी के हाउ डू वी ब्रेक देम। इफ़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, if any of the electrophile attack, what is the meaning of electrophile? electron loving species, जिसके इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। if electrophile attacks the OH bonds break, ठीक है, OH जो है वो अलग हो जाता है, OH उस चीज़ के साथ जाके लग जाएगा और ये हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर सबसे लीस्ट होगा, उसके बाद सेक है, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे नीचे आपके पास ये मिथेनॉल आएगा। यहाँ रिएक्टिविटी आपके पास चेंज हो जाती है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के केस में उल्टा होता है। न्यूक्लियोफाइल के केस में टर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसके साथ रिएक्शन को जो है वो ज़्यादा अपने साथ लगा लेता है। तो ये रिएक्शंस कैसे होंगे, आइए देखते हैं। रिएक्शंस विद रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स के अंदर बात करेंगे। रिएक्शन विद HX टू गिव अल्काइल हैलाइड, रिएक्शंस विद SO2Cl2 PX3 टू गिव अल्काइल हैलाइड्स। Actually these are the preparations of alkyl halides. If you can see, these are the preparations of alkyl halides. Alkyl halides we have seen previously, we have seen the preparations of alkyl halide, and these are the preparations of alkyl halide which are being repeated here, but हम इनको chemical properties of alcohol के अंदर discuss कर रहे हैं। Acid catalyzed dehydration, preparation of ester, oxidation and cleavage of 1,2-diols. Let's we start with the preparations of with the chemical properties of alcohol. First of all, this one is reactions with HX to give alkyl halide. It is very easy reaction, it is very simple reaction actually. Bond आपने break करना है जनाब, ये वाला, this is negative, this is positive, this is positive, this is negative. That's very simple. And this R is going to be attached with this Br, and it is RBr, and बाकी आपके पास water जो है वो form हो जाएगा. This is very simple substitution reaction है. And weak polarized है. Weak polarized means CO bond in an alcohol is very slightly polarized. Therefore it is very form of alcohol. What is the meaning of that part actually? Because carbon आपका belong करता है 4th group से, and oxygen is belonging from 6th group. So there is a bit of electronegativity difference between carbon and oxygen. So that's why they are saying alcohol is a very slightly polarized. Therefore it is first forming alkyl oxoniamine to strongly polarize the CO bond. Now it is easily attached by a nucleophile, and whatever the nucleophile is going to attack here, ये आपके पास जैसे Br है, Br अगर अटैक करेगा तो वो easily रिप्लेस कर सकता है इसको, ठीक है, इस बॉन्ड को, OH को. Remember this OH bond if it is attached with KOH or any of the base, so उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. बट यहाँ ये अटैच हो रहा है आपका कार्बन के साथ, सो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिफरेंट होंगी. तो मिक्स नहीं कीजिएगा कि OH कहीं कैसे बिहेव कर रहा है, कहीं कैसे बिहेव कर रहा है. नाउ कम्स रिएक्शन विद halogen halides to give alkyl halide. So order of reactivity of HI is maximum, then HBr and
then HCl, and reason because I is having a greater size than Br, and then Cl का सबसे छोटा साइज़ है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है Cl, ठीक है, क्योंकि उसकी जो अट्रैक्शन होती है अपने न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा होती है, तो वो इतना जल्दी रिएक्शन देते हैं लेकिन इतना ईजिली रिएक्शन नहीं देते कंपैरेटिवली आयोडाइड के, हाइड्रोजन आयोडाइड के. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ROH in this case, so primary alcohol is more reactive than secondary, and then tertiary is more reactive than primary and then secondary. Fine. HCl and primary alcohol are least reactive, therefore they react only in presence of catalyst. और यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि इनको और इनको अगर आप रिएक्शन कराना चाहेंगे तो ये सबसे लीस्ट होगा, एंड ये रिएक्शन किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होना चाहिए, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी completed. So this kind of reaction may appear in MCQs part or in a logical questions, क्योंकि ये दोनों least reactive हैं, that's why they don't react with each other as that in a that fast pace. Okay, then reaction of HX to give alkyl halide, Lucas test है. This is a very important test, and Lucas test actually इसके अंदर हम लोग this reaction proceed in presence of zinc chloride. This is a Lucas test. होता क्या है जनाब इसमें कि हम करते क्या हैं कि हम लोग ये आपके पास एज़ यू कैन सी ऑक्सीजन आपके पास हो रहा है कि आपने ऑक्सीजन जो है ना आपका वो क्या करेगा कि वो ऑक्सोनियम आयन बनाएगा. ऑक्सोनियम आयन सुनने क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का मतलब ये होता है कि एज़ वी नो दिस इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड इफ़ इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो ये सेटिस्फाइड नहीं होता अपने दो बॉन्ड से, यही कह लें, ठीक है. इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट कैन अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हेन इट सी जिंक विच इज़ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ये ईजिली इसके ले चुका है कौन, क्लोराइड. तो ये क्या करता है, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सो इट इज़ गोइंग टू अटैच इट सेल्फ विद दैट जिंक. Now if you see normally oxygen has 2 bonds, they have a valency of 2 bonds. Here oxygen is forming 3 bonds and 3 bonds in case के वो stable तो नहीं है because इसकी valency तो 2 है. So ये जो आपके पास ये part बन रहा है, this part is actually showing oxonium ion. हाइड्रोनियम आयन तब होता है जब 3 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, होता वो भी ऑक्सोनियम और हाइड्रोनियम थोड़े से मिलती जुलती चीज़ है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है वो ऑक्सोनियम होता है और ये स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ ये केस हुआ है. उसके बाद क्या होगा कि एज़ वी सी के ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास जिंक क्लोराइड की फॉर्म में ही होगा, इनका अपना भी बॉन्ड जो है वो टूट रहा होगा, ठीक है, ब्रेक हो रहा होगा कहीं ना कहीं कोई किसी और चीज़ के साथ. सो डेफिनेटली सम क्लोराइड इज़ गोइंग टू कम एंड इट इज़ गोइंग टू टेक दैट आर पार्ट विद इट सेल्फ. अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन क्योंकि ईजिली उसके साथ अटैच्ड है, लाइटर है, तो ऑक्सीजन उसको तो नहीं छोड़ेगा, तो ये कार्बन थोड़ा सा पावरफुल है, तो ये ईजिली अपने आप को, ऑक्सीजन को किसी एक को छोड़ना ज़रूर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, या आर जो है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम है, लीस्ट पोलराइजेशन होती है बिटवीन ROH, सो ये आर यहाँ से निकलेगा एंड इट विल फॉर्म RCl एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अल्काइल हैलाइड आफ्टर लुकास टेस्ट बन गया है. और आखिर में आपके पास जो बन गया है दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग होती है एक्चुअली जो हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो यहाँ मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स आपके पास फॉर्म हुआ है ड्यू टू द एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारे पास थे उधर, और फर्दर ऑन हाइड्रोनियम आयन के साथ इसने रिएक्शन करना है और यहाँ आपके पास जिंक क्लोराइड दोबारा से फॉर्म हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो ये लुकास टेस्ट होता है. ये हम लोग बेसिकली लुकास टेस्ट करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. दिस इज़ एक्चुअली टेस्ट होता है फॉर इन द लैब. हम करेंगे भी लैब जब हमारी इंशाल्लाह हम लोग करवाएंगे तो उस वक्त हम लोगों ने टेस्ट करने होते हैं लुकास टेस्ट. ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग ये करेंगे और जिंक की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ये करते हैं. आइडेंटिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. टर्शरी अल्कोहल immediately forms an insoluble layer of alkyl chloride. Secondary forms an insoluble secondary alkyl chloride in 5 to 10 minutes and primary alcohol forms an insoluble primary alkyl chloride on heating. ठीक है, यहाँ मैं आपको एक कोशिश करती हूँ एक वीडियो दिखा दूँ इसकी, अगर मुझे मिलती है तो.
जी, so this is a Lucas test which I was teaching you. Okay, this actually it gives turbidity or cloudy solution in for tertiary, and for primary it takes few minutes to a few minutes के बाद ये reaction show होता है, and for primary ये नहीं होता. सही है. So normally we know कि alcohols जो होते हैं basically they are soluble in water, but the byproduct, the final products are not. So this is how 2-methylpropane alcohol, if you are allowing it to react, so it will immediately form that turbid solution. ये वाइट कलर का आपको जो दिख रहा है this solution actually ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा. सही है. So that is for tertiary alcohol. When it comes to propane to all primary alcohol, so primary alcohol फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देगा. इट विल टेक सम टाइम. एज यू कैन सी कि हमने मिक्स किया है जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन और सेकेंडरी प्रोपेन टू ऑल का. सो इट विल फॉर्म अ टर्बिड सोल्यूशन बट आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद मिलेगा आपको. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइमरी के अंदर जब हम प्रोपेन 1-ol का रिएक्शन करेंगे तो इट विल नॉट form any kind of reaction, so it will not give any kind of reaction, और कोई आपके पास turbidity या cloudy solution नहीं बनेगा. So that's all about today. आज के लिए इतना काफ़ी है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किए हैं, लुकास टेस्ट तक किया है हमने. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.